ناظرین آداب، روبی چینل کی خاص پیشکش گوشہ غیور میں میں آپ کا میزبان انعام الرحمن غیور ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ناظرین، ہر بار ہمارے تعارف میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ گوشہ غیور روبی چینل کے نشریاتی نقشے پر وہ مقام ہے جہاں پر ہماری ملاقات ہوتی ہے، کسی نامور منفرد ہستی سے گفتگو ہوتی ہے، اہل فہم و ذکا کے ساتھ، ایسے موضوعات پر جن کا راست تعلق ہوتا ہے آپ کے ہمارے حالات، معاملات وغیرہ وغیرہ سے۔ آج کی گوشہ غیور کی یہ نشست، یہ محفل گوشہ غیور کی اپنے آپ میں ایک انوکھی اور عجیب و غریب قسم کی محفل ہے، کیونکہ اس بار گوشہ غیور میں کوئی میزبان تو ہے لیکن کوئی مہمان نہیں، اور آپ کے میزبان انعام الرحمن غیور کے ساتھ آج اگر کوئی مہمان ہے تو گوشہ غیور کی تنہائی ہے، اور گوشہ غیور میں اس تنہائی کا ساتھ دینے والے ان سارے مہمانان کی آوازوں کی بازگشت ہے جنہوں نے اب اس محفل کو زینت بخش کر اس پروگرام کو اپنی آراز سے سرفراز فرما کر ایک نیا وقار، ایک نئی بلندی عطا کی۔ آج گوشہ غیور میں ناظرین میں انعام الرحمن غیور آپ سے آپ کی اجازت کے بغیر یہ لبرٹی، یہ آزادی لینا چاہتا ہوں کہ میں اس پروگرام میں کچھ کہوں ان سارے پروگراموں کے تعلق سے جو اب سے پہلے ہم کر چکے۔ تو آئیے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ماضی میں جا کر۔ ویل ٹرن دا پیج بیک، ویل گو بیک ٹو دا ٹائمز وی سٹارٹڈ۔ یہی رمضان کا مہینہ تھا، انہی دنوں میں ہم نے گوشہ غیور کی شروعات کی تھی، اور سب سے پہلے اس گوشے میں ہم نے مدعو کیا تھا عالی جناب محترم المقام جناب اسد الدین اویسی صاحب، بیرسٹر، ممبر پارلیمنٹ کو۔ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہمارے ناظرین کی خاطر اپنا وقت نکالا تھا اور اپنا ایک طویل انٹرویو ہمیں دیا تھا، محض اس خیال سے کہ ان کے خیالات سے ہم کو آگاہی ہو اور ان خیالات سے ہمیں کچھ روشنی ملے، کچھ معلومات ملیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ گوشہ غیور میں اسد الدین اویسی صاحب نے ہم کو بڑے مفصل طور پر آسام کے حالات کے تعلق سے آگاہی دی تھی، اپنی فکر بندی کا اظہار کیا تھا، وہاں کے واقعات، وہاں کے حالات کے تعلق سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ان واقعات کے ہونے کا پس منظر کیا ہے، اور ان واقعات کے افسوسناک پہلو کیا کیا ہیں۔ انہوں نے یاد ہوگا آپ کو یہ تک کہا تھا کہ فساد سے متاثرہ لوگوں کی بدحالی، زبوں حالی کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس فاقے کی یہ صورتحال ہے کہ فساد زدہ عورتوں کے سینوں میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دودھ تک باقی نہیں رہا تھا۔ یہ بڑے افسوسناک بات تھی پچھلے سال کے آسام کی، اور ہم اس سے بھی گزر کر آگے نئے رمضان میں آگئے ہیں، نئے حالات سے دوچار ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر آسام کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اور حکومت وقت سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان حالات کو فوری طور پر قابو میں لائیں گے۔ گو کہ وہ حالات ضروری نہیں ہے کہ جو ہے فساد سے ہی متعلق ہوں، کمیونل فلیئر اپ کا ہی نتیجہ ہوں۔ وہ حالات کسی بھی طرح سے اگر قابو سے باہر ہوتے ہیں، جس میں امن و ضبط بگڑتا ہے، نظم و نسق بگڑتا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ فوری امدادی کارروائی کرے اور فوری اس کے روک تھام کے لیے کوشاں ہو جائے۔ تو یاد ہوگا آپ کو کہ رحیم قریشی صاحب سے پھر ہم نے بات چیت کی تھی، انہوں نے بھی آسام کے تعلق سے، برما کے تعلق سے بڑی ہی بصیرت افروز باتیں کی تھی، انتہا سے زیادہ معلوماتی گفتگو کی تھی، ہمیں پوری طور سے مطلع کیا تھا کہ اس سارے معاملے کی شروعات کہاں سے ہوئی، یہ فساد پیدا کیسے ہوتا ہے، یہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور کس طرح سے قومی و بین الاقوامی سطح پر کس طرح کی جو ہے ناانصافیاں، بلکہ یوں کہیے کہ دھاندلیاں ہو رہی ہیں، سیدھا جو ہے ڈھٹائی سے کام لے کر پرانے ساکنان میانمار کو جو ہے بے دخل کیا جا رہا ہے ان کے مقامات سے، اور اس معاملے میں کس طرح کی کارروائی جو ہے ہو سکتی ہے، سدباب کے لیے کیا جانا چاہیے، اور بین الاقوامی معاشرے کو کس طرح سے ان متاثرہ لوگوں کی مدد و امداد کو پہنچنا چاہیے۔ رحیم قریشی صاحب سے ہم کو بے انتہا مفید مشورے ملے تھے، بہت معلوماتی گفتگو ہوئی تھی۔ ہم کو جانا چاہیے پھر پس منظر میں، ہم کو جانا چاہیے ان پرانے پروگراموں میں جہاں پر ہمیں ان کی ان معلومات سے فائدہ اٹھا کر نئے لائحہ عمل کو مرتب کرنا چاہیے کہ آئندہ ایسی باتیں نہ ہوں اور ایسے واقعات نہ ہوں، ان کا ہم کس طرح سدباب کریں، ان کے تعلق سے ہم کس طرح سب لوگ مل کر اپنا ذہن جوڑ کر کس طرح ان معاملات کے، ان حالات کے سدباب کرنے کی کوشش کریں۔
नाजरीन, हमारा एक गोशे गयूर का एक इंतहाई पॉपुलर प्रोग्राम था जो स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य कानपुर के यहाँ तशरीफ लाए थे। हैदराबाद शहर में उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे उनके प्रोग्राम हुए, तकरीरें की उन्होंने और बहुत लोगों को बिल्कुल नए सिरे से उन्होंने जो है अपने नजरिए से इस्लाम क्या है उसको समझा और हमको बताया कि वो उनकी समझ क्या है इस्लाम के ताल्लुक से। ये वो शख्स हैं, ये वो बुजुर्ग हैं जो पहले हकीकतन बहुत ज्यादा जो है क्या कहना चाहिए कि एंटी इस्लाम थे, एंटी कुरान थे। इन्होंने तो ये तक किया था कि इन्होंने कुरान की मजम्मत में इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, कुरान को के ताल्लुक से ऐसी बातें बताई थी जो इंतहाई मायूब और हमारे लिए एतराज के काबिल जो है हो सकती थी। लेकिन बाद में इनको किसी ने समझाया कि भाई आप पूरी तरह से कुरान को पढ़िए तो सही, आप जानने की तो कोशिश कीजिए कि आखिर कुरान है क्या। और ये सार जब उन्होंने वाक़तन दिल से कुरान को समझने की कोशिश की तो उन्हें नजर आया और उन्हें लिखना पड़ा। उन्होंने नई 2 किताबें लिखी और अपनी पुरानी किताबों को मार्केट से विड्रॉ किया। हमारे सामने इस बात का एतराफ किया कि उन्हें अफसोस है कि वो कुरान का जो है वो उस किताब का वो अंग्रेजी वर्जन मार्केट से वापस नहीं ले सके, लेकिन हिंदी वर्जन शायद वो वापस लेने में कामयाब हो गए। इस तरह की बात कही थी उन्होंने। तो कहने का मतलब ये कि स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य एक इंतहाई इंसान दोस्त किस्म के, एक सच्चे किस्म के धार्मिक यानी धर्म परस्त यानी दीन परस्त आदमी हैं। उन्होंने हमको ये तक कहा कि आज के जमाने में अगर सही मानों में सनातन धर्म जो कि हिंदुस्तान का असल धर्म है उसके सही अगर जो है कोई पैरोकार लोग हैं और जो है अल्लाह ताला की तौहीद परस्ती जिसे कहेंगे हम, तौहीद परस्ती पे सही तौर पर जो अमल पैरा हैं तो वो लोग स्वामी लक्ष्मण शंकराचार्य के बमुजिब मुसलमान लोग हैं। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान इस्लाम कहीं से भी मुसलमान को दहशतगर्द होने की जो है तलकीन नहीं करता, कहीं से भी इस्लाम जो है इंसान को इंसान दुश्मन होने की तलकीन नहीं करता। इस्लाम की तालीमात सारी की सारी इंसान दोस्ती पर मुबन्नी है और इस्लाम की तालीमात वाक़तन अगर उस पर सही तौर पर अमल पैरा हो हम सब लोग तो वाक़तन आज के ज़माने में बनी नू इंसान की जो मुश्किलात हैं उसका बहुत सारा हल जो है इस्लामी तालीमात के ज़रिए हमको मिल सकता है। ये बात स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य ऑफ कानपुर ने हमसे कही थी हमारे गोशे गयूर में। नाजरीन, गोशे गयूर की हमेशा से कोशिश रही कि वो तालीमी मैदान में न सिर्फ ये कि अपने कौम के लोगों को, न सिर्फ ये कि अपने नाजरीन को, बल्कि नाजरीन में हर तबके के लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाए कि तालीमी मैदान में उनको और आगे बढ़ने के लिए क्या मौके हासिल हैं, वो किस तरह से अपने आप को तालीमी तौर पर मजीद लैस कर सकते हैं, अपने आप को आरास्ता कर सकते हैं। चुनांचे इसी ज़मीन में गोशे गयूर ने यहाँ से अलीगढ़ तक का सफ़र किया था और लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह जो रिटायर्ड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और जो अब मौजूदा तौर पर जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनसे उनकी गोनागू मसरूफियात के बावजूद एक तवील इंटरव्यू के लिए वक्त लिया था और जनरल साहब ने अपनी फौजी फराखदिली का मुजाहरा करते हुए हमें वक्त दिया था और हैदराबाद के नाजरीन के लिए अपनी मुफीद आरा हमको जो है दी थी। और उस इंटरव्यू का निचोड़ यह था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बेइंतहा मौके हैं आला तालीम और बल्कि आला तालीम हासिल करने के, और उससे हिंदुस्तान के हर शहरी को मुस्तफीद होना चाहिए, बिलखुसूस मुसलमानों को मुस्तफीद होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कायम ही की गई थी कि अगर तालीमी तौर पर मुसलमान तबका बिछड़ रहा है तो उसके लिए वो मौके फराहम किए जाएं जहां पर वो तालीम के आला तरीन मौके हासिल करे और उससे फैज़याब हो। तो जनरल साहब ने ये कह चुकने के बाद कि वो यकीनी तौर पर जब अपना ऑफिस छोड़ने से पहले उनकी यही कोशिश रहेगी कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाए हिंदुस्तान की। तो जनरल साहब ने इस ज़िमन में जो कोशिशें की हैं उसके ताल्लुक से हमें मुतल्ले किया और भी जो उनके अज़ाइम हैं उनके ताल्लुक से हमें मुतल्ले किया और हमें ये कहा उन्होंने कि न सिर्फ ये कि वो हिंदुस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाएंगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, बल्कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज में जाने की तरकीब देंगे या डिफेंस सर्विसेज में जाने की तरकीब देंगे। वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, दूसरी और जो है पुलिस की जो है तंजीमें हैं जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हुई,
या इंडो टिबेटन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हुई, इस तरह के बहुत सारे मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उसके अंदर वो उन्होंने कहा कि कौम के लिए बेइंतहा मौक़े मौजूद हैं और वो बेहतरीन किस्म की नौकरी है जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि जो है तनख्वाहें बेइंतहा अच्छी हैं बल्कि ये है कि बहुत सारी सहूलियात जिसके अंदर सस्ते दामों ज़रूरियात की चीज़ों का मिलना या घर बनाने के लिए खर्चाजात का मिलना या आला तालीम के लिए खर्चाजात का मिलना, इस तरह के बहुत सारे फवायद बताते हुए उन्होंने ये कहा कि फौज की नौकरी की सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपने आप को एक ऑन हाई फील करता है, अपने आप में एक खुशी, एक तरह का फख्र महसूस करता है कि वो एक अच्छे काम में है, मुल्क की जो है रक्षा के मामले में जुटा हुआ है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को मुस्तैद रखा हुआ है। ये ऐसे ख्यालात जो है होने से होता यह है नाज़रीन कि आदमी का एक मेंटल स्टेट जो होता है वो स्टेट अपने आप में बेहतर होकर उस आदमी को एक अच्छा शहरी और अच्छा शहरी होने के नाते एक अच्छा मशवरा देने वाला, एक अच्छा इंस्पिरेशन देने वाला शहरी ऐसा इस तरह का बनाता है। तो लाजिम है कि वैसे लोगों के बच्चे, उनके महल्ले वालों के बच्चे, उनके जो है रिश्तेदारों के बच्चे इस तरह की चीज़ों से इंस्पिरेशन लेकर वो भी अपने आप को उस तरह की किसी पोजीशन पर पहुंचाने के लिए कोशां हो जाते हैं। तो जनरल ज़मीरुद्दीन शहाब के मशवरे इंतहाई मुफीद थे हमारे लिए। मैं आज फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि नाजरीन हैदराबाद, शहरियान हैदराबाद को चाहिए कि वो शहर से बाहर की यूनिवर्सिटियों पर भी नजर डालें और वहां के जो तालीमी मौक़े हैं उनसे मुस्तफीद हों। यूनिवर्सिटी के माहौल की पढ़ाई और कॉलेज के माहौल की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है नाजरीन, और ये बात हमको समझनी चाहिए। हम अगर बुजुर्ग हैं तो हमारे बच्चों को समझानी चाहिए और अगर हम नौजवान हैं तो हमें खुद समझकर उसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। उसके लिए कोशिश होना चाहिए हमें कि हम किस तरह जो है ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा सकते और एक अच्छे शहरी और एक बावक़ार शहरी, एक इज़्ज़तदार शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी बनने के लिए हम अपने आप को किस तरह से लैस व आरास्ता कर सकते हैं। हमने रहमान खान साहब जो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर हैं, हमने उनको ज़हमत दी कि वो गोशे गयूर को अपने ख्यालात से जो है सरफराज फरमाए। उन्होंने रात के 12 बजे उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने हमारी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया। ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने शहरियान हैदराबाद के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया कि दिन भर की मसरूफियात के बावजूद, दिन भर के काम की थकन के बावजूद उन्होंने तकरीबन रात के 12 बजे हमें वक्त दिया और एक तवील इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि वो किस तरह से अपने कौम के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर उनके महकमे से मुताल्लिक कोई बात है, कोई उनसे रब्त पैदा करता है, कोई उनको अर्जी देता है, तो वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि उस मामले को सुलझाया जाए, उस मसले को सुलझाया जाए और उससे एक अच्छे से अच्छा हल निकाला जाए मसले का। ये थे रहमान खान साहब, यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर। ये मोहब्बत थी उनकी कि वो गोशा गयूर में तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये वादा किया कि अगर उन तक कोई मामला आता है, उन तक कोई बात पहुंचती है कौम के जो है के मफादात से मुताल्लिक, तो वो ज़रूर कोशा रहेंगे कि अच्छे से अच्छा हल उन कौम के मसाइल के ताल्लुक़ से निकालें। नाजरीन, हमारी एक इंतहाई प्यारी शख्सियत इस दौर में एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद आवाज़, मुकम्मल तौर पर एक हक गो और इंसाफ पसंद आवाज़, एक उर्दू के चाहने वाले की आवाज़ के तौर पर हमको जो सदाई देती है पिछले कई सालों से, वो है जस्टिस कटजू की। जस्टिस कटजू, जैसे कि आपको पता है, उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर बड़े बेबाकाना जो है अपनी आरा से और अपने कोर्ट के ऑर्डर से बेबाकाना तौर पर उन्होंने जो है वो ऐसे स्टैंड लिए जो माशरे में तबद्दुल का बायस बन सकते हैं या माशरे में एक फिक्र नौ की वजह बन सकते हैं। जस्टिस कटजू, उनसे हमने सवाल किया कि जस्टिस साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो तारीख पढ़ाई जा रही है वो तारीख क्या सही तारीख है? क्या इस तरह की तारीख पढ़ने से अच्छे शहरी बन पाएंगे लोग? क्या उन लोगों को सही जो है मालूमात होंगी? क्या पुरानी तारीख के बारे में अगर मालूमात सही ना हो, दुरुस्त ना हो, तो आने वाले ज़माने में क्या पुरानी बातों के ताल्लुक से
صحیح قسم کے خیالات اور خیالات کی روشنی میں صحیح قسم کی پالیسیاں کیا ترتیب پا سکتی ہیں؟ کیا لوگوں کے ذہن میں جو زہر بھر رہا ہے، لوگوں کے دل میں جو زراڑ پڑ رہی ہے، وہ دور ہو سکتی ہے اس طرح کی تاریخ پڑھائی جانے سے؟ تو جسٹس کٹجو صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا، اور یہ جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے اس تاریخ سے تفرقہ بڑھے گا، لوگوں کی دلوں کے بیچ کی دراڑیں بڑھیں گی۔ تاریخ کو صحیح طور پر پڑھانا چاہیے، تاریخ میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، اور اچھے برے لوگوں کی اچھائیاں اور برائیاں یکساں طور پر جو ہے تاریخ میں پڑھائی جانی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں، طالب علم جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، جو تاریخ کا صحیح معنوں میں ریسرچ اسکالر ہے، وہ صحیح نتائج کے اوپر پہنچ کر صحیح طور پر جو ہے اپنی تفتیش، اپنی تحقیق کا جو ہے ہمیں نچوڑ دے سکے۔ تو یہ تھے جسٹس کٹجو، جنہوں نے ایک انتہائی دلچسپ شعر لکھا تھا پاکستان کے فارن منسٹر کو اپنا کوئی خط ایڈریس کرتے ہوئے، اور شعر یہ تھا کہ میری سنو جو گوشت نصیحت نویش ہو، میری سنو جو گوشت نصیحت نویش ہو، دیکھو مجھے جو دیدائے عبرت نگاہ ہو۔ میری سنو جو گوش نصیحت نویش ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نویش ہو، دیکھو مجھے جو دیدائے عبرت نگاہ ہو۔ یہ انہوں نے پاکستان کے فارن منسٹر کو شروعات میں یہ شعر لکھ کر ایک بہت طویل مراسلہ لکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم کو چاہیے، ہمارے ملک کے لوگوں کو چاہیے کہ ہم آپسی اختلافات کو مٹا کر ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کی صف بندی، صف آرائی والے جو ہے ماحول کو ختم کر کے آپسی بھائی چارے کے ماحول کو بڑھاوا دینے کی کوشش کریں۔ اور اس ضمن میں انہوں نے جو خط لکھا تھا وہ ایک انسان دوستی کا ایک اچھا نمونہ اسے کہہ سکتے ہیں ہم نے جسٹس کٹجو کے بعد جو بات نہیں ہے، یہ سلسلہ وار بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، لیکن گوشہ غیور میں جو مختلف قسم کے مختلف شعبہ جات سے جس طرح کے لوگوں کو ہم نے زحمت دی، اور انہوں نے آ کر جو ہے نہ صرف یہ کہ ہماری عزت بڑھائی بلکہ ہماری معلومات میں اضافہ کیا، ہمیں اپنی آراء سے سرفراز فرما کر ہمارے ذہن کو نئی روشنی سے روشناس کرایا، ان ویسے لوگوں میں ایک ہماری شہر کی پیاری سی ہستی ہیں انورادھا ریڈی۔ انورادھا ریڈی سمستان سرنا پلی سے ان کا تعلق ہے، اور میں ان کے تعلق سے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ سمستان کیا تھے۔ ریاست حیدرآباد اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ریاست تھی، 80,000 مربع میل سے زائد اس کا رقبہ تھا، اور اس وسیع و عریض ریاست کے اندر چند چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں تھیں جو زمانہ قدیم سے اس علاقے کی سمجھیے کہ پرنسپلٹیز کہہ لیجیے آپ، شیفٹین شپ کہہ لیجیے آپ، ویسی ہوا کرتی تھی۔ بعض تو اتنی قدیم ہے کہ جو ہے وہ ہزاروں سال پیچھے چلے جاتی ہے ان کی تاریخ۔ تو ویسی ہی ایک سمستان جس کی رکن ہے، جس کے خاندان کی رکن ہے انورادھا ریڈی، ان سے ہم نے پوچھا، ان سے ہم نے جاننا چاہا کہ یہ حیدرآباد کا جو ایک خوبصورت سا جو نقشہ بنتا ہے، اور اس خوبصورت سے نقشے میں یہ چھوٹے چھوٹے سے دمکتے ہوئے ستارے جیسے سمستان، یہ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کیا تھے۔ یوں دیکھنے کو حیدرآباد کہتے ہیں کہ ایک مسلم ریاست تھی، ایک مسلم جو ہے اس کا حکمراں ہوتا تھا، اور اس کی رعایا زیادہ تر جو ہے غیر مسلم تھی، اور اس کے بیچ میں یہ چھوٹے چھوٹے دمکتے ہوئے ستاروں جیسی سمستانیں، یہ چھوٹی سی ریاستیں، یہ ان کا کیا تاریخ ہے، ان کا کیا پس منظر ہے۔ تو انہوں نے بڑی جو ہے مفصل روشنی ڈالی سمستان کے تعلق سے، اس کا جو تعارف کرایا انہوں نے کہ یہ سمستان وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو زمانہ قدیم سے اپنے ایریا میں ایک طرح کا اقتدار ان کو حاصل تھا، اور انہوں نے جب بالادستی تسلیم کر لی، چاہے وہ بہمنی سلاطین ہو یا بعد میں مغل سلاطین ہو یا بعد میں جو ہے نظام حیدرآباد ہو، ان کی بالادستی تسلیم کر لی، تو ان کے رسم و رواج، ان کی اپنی ریاست میں اس کے ساتھ رہنے کی، اور جو ہے اپنے تہذیب، اپنے تمدن کو فروغ دینے کی جو ہے پوری آزادی حاصل تھی۔ تو انورادھا ریڈی ویسی ایک سمستان کے ایک باوقار خاندان کی ایک باوقار رکن ہیں، اور حیدرآباد کی فلاح و بہبود کے لیے وہ انتہائی کوشاں رہنے والی، ہمیشہ اپنے آپ میں جٹی ہوئی رہتی ہیں کہ حیدرآباد کا تاریخی سرمایہ، حیدرآباد کا ثقافتی سرمایہ، حیدرآباد کا آرکیولوجیکل سرمایہ، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ وہ قوت بخش سکیں، اس کے لیے وہ جٹی ہوئی رہتی ہیں، کوشاں رہتی ہیں۔
चुनांचे याद होगा आपको जो है हमारे शहर में जब पिछले दिनों जो है कुछ एक तारीखी मुकाम को लेकर कुछ गड़बड़ हुई और कुछ जो है तोड़ फोड़ हुई, कुछ जो है क्या कहते हैं एक तरह का जो है फसाद का सा माहौल पैदा हो गया। तो वैसे हालात में अनुराधा रेड्डी ने बड़े बेबाकाना तौर पर अपनी ख्यालात का जो है इजहार किया था मीडिया में, खुसूसन प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। लोग बहुत उनसे नाराज भी हुए कि ये ऐसे कैसे कह सकती हैं, मगर उन्होंने कहा वही जो हक और इंसाफ पे मुबनी था, और उनके कहने को वो आज भी कहती हैं कि मुझे अभी भी कहना पड़ेगा तो मैं हर बार कहती रहूंगी, जरूर कहूंगी। और वो थी अनुराधा रेड्डी जिन्होंने हमें समस्तान से वाकिफ कराया। नाज़रीन, समस्तान को जानने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले हैदराबाद को समझें, हैदराबाद को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले हिंदुस्तान को समझें। तो जरूरी है नाज़रीन कि अच्छे शहरी बनने के लिए, एक शहर में शहरी बनने कर एक बावखार जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि हम ना सिर्फ ये कि अपनी तालीम का फायदा उठाएं, बल्कि अपने इल्म में मुसलसल इजाफे की कोशिश करते रहें। और हमारे लिए जरूरी है कि हम हमारे अतराफ इकनाफ में जो चीजें हैं उसके ताल्लुक से जानें, चाहे वो हमारा शहर हो, उसके अपने बल्दिया के मसाइल हों, या उसके आबी मसाइल हों, या उसके बरखी के मसाइल हों। ये सब चीजों को जानने के साथ साथ नाजरीन हमें यह भी जानना होता है कि मुल्क में क्या हो रहा है और मुल्क में किस तरह की चीजों के होने या नहीं होने से क्या बिगाड़ पैदा हो रहा है या क्या अच्छाई आ रही है। वो सब चीजों को जानने के लिए नाज़रीन जरूरी है कि तालीम याफ्ता आदमी अपने आप को हर तरह की मालूमात से लैस रखे। और वो मालूमात ही क्या जो आदमी को अपने खुद के ताल्लुक से ना हो, अपने शहर के ताल्लुक से ना हो, अपने शहर की तारीख के ताल्लुक से ना हो। तो गोशे गयूर की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि गोशे गयूर लोगों में वो शऊर पैदा करे, वो रग़बत पैदा करे कि वो लोग अपनी मालूमात में इजाफा करके एक सही रोशनी में आइंदा की जिंदगी को देखें और उसके ताल्लुक से एक लाहिया अमल मुरत्तिब करें। मैं फिर से कहूंगा कि गोशे गयूर का बुनियादी मकसद यह है कि तालीम का फरोग हो, लोगों में जो है रोशन ज़मीरी का फरोग हो, लोगों में जो है कुशादा दिली आए, लोगों में जो है रोशन ख्याली आए, लोगों में जो है अपने आप को समझने और दूसरों को समझने और उनके साथ मिल बैठने और ज़िंदगी गुजारने का खुशी के साथ हंस बोल कर ज़िंदगी गुजारने का सलीका पैदा हो। नाज़रीन, हर जगह जो है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को ओवरकम करने के लिए ही, उन पर गालिब आने के लिए ही, उन जो है तफर्रुकात को पर गलबा पाने के लिए ही इल्म हमारी मदद को आता है। और इल्म हासिल करने का यह फायदा होता है कि हम अपने आप को समझते हैं, अपने पड़ोसी को समझते हैं और उसके साथ अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने का सलीका हम में पैदा होता है। तो इल्म के फरोग के लिए गोशे गयूर हमेशा से कोशा रहा है और उसकी कोशिश हमेशा अपने आप में जारी रहेगी। हमारी ऐसी एक बात को लेकर हमने एक जहमत दी थी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर रतन लाल हंगलू को, जो साबिक में हेड थे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। रतन लाल हंगलू साहब जो है बाय ओरिजिन जो है कश्मीर के मुतवत्तिन हैं, लेकिन उन्होंने जो है दिल्ली में पढ़ाई की, फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनकी नौकरी हुई। वो एक इंतहाई आलिम फाजिल किस्म के आदमी हैं जिन्होंने जो है दर्जनों किताबें लिखी, मुख्तलिफ मज़ामीन पर लिखी, उर्दू में शायरी की किताबें लिखी, उर्दू में तारीख की किताबें लिखी, अंग्रेजी में तारीख की किताबें लिखी और बहुत कुछ किया। और तारीख पढ़ाई लोगों को, और उनकी पढ़ाई हुई तारीख के बुनियाद पर और भी बहुत सारे लोग जो है आलिम फाजिल हो गए, यानी डॉक्टर्स बन गए, प्रोफेसर्स बन गए। और उनके स्टूडेंट्स में कई ऐसे लोगों से वाकिफ हूं मैं जो आज तारीख के मौल्लिम कहे जाते हैं और सही माना में मौल्लिम कहलाने के हकदार हैं। तो रतन लाल हंगलू साहब से हमने कश्मीर के दुखते हुए नाजुक मसले पर हमने जो है उनके ख्यालात जानने की कोशिश की। वो पंडित हैं ज़ात के और कश्मीरी हैं, तो हमने उनसे जानना चाहा कि क्या ये कश्मीर का मसला क्या सिर्फ जो है वहाँ की जो है हमेशा क्या कहते हैं एजिटेशन पर आमादा, हमेशा जो है किसी तरह की जिद्दोजहद पर आमादा वैसी आवाम की करने की वजह से है, या ये भी है कि कुछ के पस मंजर में कुछ और भी बातें कार फरमाएं। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर
पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात को बदलना चाहिए और उन हालात को बदलने में हुकूमत का एक बहुत बड़ा रोल होता है और हुकूमत को चाहिए कि वो अपने रोल को सही तौर पर प्ले करे। उन्होंने कहा कि जो है वहां पर जो स्पेशल पावर्स हैं आर्मी के, उन पावर्स को हटना चाहिए। आप एक पूरे सूबे की आवाम को की शर्म छीन लेते हैं अगर इस तरह करते हैं। माना कि जो है जरूरी सिक्योरिटी रीजंस के लिए घरों की तलाशी होती होगी, लोगों की जो है तलाशी की ली जाती होगी, लेकिन ऐसा करने में पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए कि किसी तरह से लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़े, उनकी शर्म न छिन जाए उनसे। ये बात उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर की। उन्होंने और भी बहुत से मामलात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने चेचनिया के मौजू पर हमको अपनी ख्यालात से आगाह किया कि चेचनिया एक छोटा सा मुल्क, रशिया जैसे बड़े मुल्क के बीच में एक छोटा, बिल्कुल एक नुक्ते बराबर मुल्क, और वहाँ के अवाम को किस तरह की जो है मुश्किलों से दो चार रहना पड़ा, किस तरह जो है वो मुसलसिल जो है जुल्म इस्तिबदाद का शिकार रहे हैं एक बड़े जो है इंपीरियल पावर का, और किस तरह बहादुरी से वो जुटे हुए हैं अपनी आज़ादी के लिए या अपनी जो है खुद मुख्तारी के लिए। तो रतनलाल हंगलू साहब से हमें इंतहाई मालूमाती पुरमस्त किस्म की जो है बातें मालूम हुई थी और उन्होंने बड़े ईमानदाराना तौर पर हालात पर रोशनी डाली थी। नाज़रीन, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमें इजाज़त दीजिए। हम आते हैं आपसे इस सिलसिले गुफ्तगू को जारी रखने के लिए बस एक छोटे से वक्फे के बाद।